इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ हमारे स्पोक्स पर्सन भी हैं, हमारे पार्टनर्स भी हैं जो दिल्ली बेस्ड हैं, हमारे स्टार्टअप पार्टनर्स भी हैं जो मोहाली में बेस्ड हैं। तो आज वो आपको बताएंगे वो किस तरह सेल्स फोर्स से काम कर रहे हैं और सेल्स फोर्स किस तरह चंडीगढ़ की इकॉनमी, हरियाणा की इकॉनमी की कंट्रीब्यूट कर रही है एडिशनली। So if you can introduce the speakers, then we can start with the conversation. Thanks, Ashim. First of all, thank you so much everyone for coming. आपको सब टाइम लेके आए, सबको धन्यवाद. And so before we start, it's my honor to welcome our esteemed panel. So I would like to give a quick and brief introduction to them. So firstly, we have Mr. Nishant Kalra. He is the VP for Sales in Salesforce India, with a proven track record in driving data-driven transformation in India's top brands. Nishant he comes with over 25 years of experience in SaaS, AI, and CRM, and is extremely instrumental in driving the growth of Salesforce in India. Welcome, Nishant. Next, we have Mr. Naresh Khosla, who is the director for Quarter4 Technologies Private Limited, one of our key partners in India. He is a seasoned sales veteran with over 3 decades of experience driving technology transformation across different regions. And he has witnessed the industry evolve from its hardware-centric origins to today's complex ecosystem dominated by AI, ML, and blockchain. Welcome, Mr. Naresh. And lastly, we have Mr. Kanik Arora. He is the CEO and co-founder of Sales Agents AI, a dynamic startup. And Kanik brings a wealth of experience in leveraging AI to revolutionize sales strategies and thus making him a key player in the industry. Welcome, Kanik. Thank you. So, बस आज के इवेंट को outline करने के the first 15 minutes, our leaders will be presenting a few insights and will be sharing some insights with you. उसके बाद we'll have an open round of Q&A session with you all. So without any further delay, I'll hand it over to Nishant. Thank you, Soumya. Thank you, Asim. Sat Sri Akal, everybody. Thank you for coming down. Let me start with our core value of gratitude. आप सबका धन्यवाद of taking out time and coming and joining us. Next 15-20 मिनट में मैं आपको Salesforce के products के बारे में जानकारी देना चाहूँ, स्टोरी क्या रही है, and more importantly, चंडीगढ़ की क्या opportunity आप देखते हैं. With that, we'll get started. To redefine the relationships that the business have with their customers. तो जब इसकी शुरुआत हुई थी, तब Amazon था. Amazon अपने products बेचता था B2C environment में. We wanted to give the same experience to our businesses as they engage with their customers from a B2C perspective. तो हमने जब कंपनी स्टार्ट करी, तो business applications were being delivered via cloud. इसका क्या मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट में? जैसे आप Gmail के द्वारा आप ईमेल एक्सेस करते हैं, ऐसे ही हमारा विजन था कि बिजनेस एप्लीकेशंस आप एक्सेस करें, यूज करें एंड अपने कस्टमर्स के साथ नए तरीके से इंटरैक्ट करें. सो दैट वाज द फाउंडिंग विजन और पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. The company has grown multifold. It is one of the fastest growing enterprise globally as well as in India. We call this business suite of applications as customer relationship management, CRM के नाम से जाना जाता है. And अगर आप market share देखें तो we are number 1 इस market में. और आप जितने भी competitors like Microsoft, Oracle, आप उन सब के अगर market share जोड़ भी दें तो हमारे से कम है. मैं आपको एक और चीज बताना चाहूँगा. मैकेंजी ने स्टडी की थी कि कंपनीज और बिजनेसेस जो ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं वो डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन पे इम्बार्क करते हैं. नाउ हाउ डज CRM एनेबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? तो CRM के अंडर काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं. इट स्टार्ट्स विद सेल्स. आपका सेल्स ट्रांसफॉर्म करता है. सर्विस में कॉन्टैक्ट सेंटर्स होते हैं. एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए हम कॉन्टैक्ट सेंटर्स चलाते हैं. बैंकिंग के लिए हम कॉन्टैक्ट सेंटर्स चलाते हैं एंड उनको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं. द बिजनेसेस हाउ दे मार्केट एंड रीच आउट टू कस्टमर्स वो ट्रांसफॉर्म करते हैं. काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं हमारे जो ऑनलाइन जा चुके हैं. वो ये प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं टू सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन. चंडीगढ़ एंड मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया क्या इंपॉर्टेंस रखता है सेल्सफोर्स के लिए.
But Chandigarh is part of our emerging list of cities that we want to do business with and engage with companies based out of Chandigarh, Punjab and Haryana, जिनके साथ हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं। तो कुछ डेटा पॉइंट्स हैं चंडीगढ़ की तरफ जो which makes it very attractive। एक तो CAGR growth of 8% है with gross state domestic product nearing around $7 billion। What is exciting about this place is this is a manufacturing hub और वो manufacturing segment काफी booming है। So 40% of the ancillaries are catered to the tractor industry, the automotive industries, and that segment is booming। उसके अलावा pharmaceuticals companies भी हैं जो business कर रही हैं यहाँ पे, and it has got a vibrant IT industry। We've got a local startup person also। So overall अगर आप इसका state GDP देखें या फिर industries देखें, everything is trending towards very positive। If you look at the literacy levels also, they are extremely impressive। 86% of the population of $1 million, of a 1 million population is having literacy levels। So all these trends are very encouraging for us to have a Chandigarh as part of our mission for us to do business। Skills and innovation के हिसाब से देखा जाए, I briefly touched upon the skill focus। हमने Salesforce में क्या किया है, we have partnered along with a lot of agencies, National Skill Development Corporation, iSprint, NASSCOM, ICT Academy, इन सब के साथ पार्टनर करके हम 700 यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में स्किल्स बिल्ड कर रहे हैं। एंड दिस इज द एज ऑफ AI, राइट? दिस इज द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड उस एज में स्किल्स बिल्डिंग फॉर्म्स अ ह्यूज हैज अ ह्यूज इंपॉर्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो यू आर अ बिग पार्टनर। आप अपनी ग्रोथ स्टोरी बताइए, फ्रॉम 4 people to 250 people, right, for Quadrafort। So what are you seeing in the market? How are customers engaging, and how are you building skills to make the customer successful? हमारा जो एक स्ट्रक्चर रहा है क्वाड्राफोर्ट का, जो जर्नी जो निशांत ने बताई अभी, कि हम लोगों ने 4 साल पहले 4 लोगों से स्टार्ट किया था। आज हमारे पास 200 लोग हैं। हमें लास्ट ईयर सेल्सफोर्स ने APAC पार्टनर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। क्या ऐसा हमने डिफरेंटली किया या हमने क्या सोचा जिसके कारण हम ये अच्छा काम कर पाए? वी ग्रोइंग इन 100% एवरी ईयर, एंड द रीजन इज हमने आज से 4 साल पहले जब ये सोचा कि वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हम कस्टमर या पार्टनर है जो भी हम उसको कह सकते हैं, उसमें चेंज लेके आए। तो व्हाट वी डिड वाज के वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर इकोसिस्टम, लॉट ऑफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द vendor or a strategic partner ecosystem like Salesforce। Then we said, okay, let us bridge that gap। हमने क्या रियलाइज किया कि Salesforce के पास दुनिया के सबसे बेस्ट सॉल्यूशंस है। Salesforce जैसे निशांत ने बताया कि सारे ही कंपटीशन अगर कमेंट वगैरह कर ले, उससे ज्यादा मार्केट शेयर Salesforce का अकेले। तो हमने क्या किया, एक इंटरनल स्किल डेवलप किया फॉर कस्टमर। हमने कस्टमर को अपने सेंटर में रखा। हमने बोला कि कस्टमर जो है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको समझेंगे और उसके लिए सोल्यूशन लेके जाएंगे। तो हमने जो पहले साल में जो स्टार्ट किया, हमने क्या किया, हमने बोला कि एक काम करते हैं, कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट समझते हैं, सेल्सफोर्स की हर एक चीज के अंदर हम अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करते हैं और हम दोनों को गैप ब्रिज करते हैं। हमें 1 साल के बाद में रियलाइज हुआ कि खाली सेल्सफोर्स से कस्टमर का पूरा काम नहीं खत्म हो सकता। कस्टमर को कुछ चीजें और चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि सेल्सफोर्स से और चाहिए होता है। अब एग्जाम्पल क्या है कि सेल्सफोर्स हर एक कस्टमर के पास में या काफी कस्टमर के पास में आज या कल एक ERP होता है। आपने SAP का नाम सुना होगा, किसी का नाम सुना होगा। अब वो दोनों आपस में इंटरेक्ट करना चाहिए। तो हमने इनहाउस टीम डेवलप करी जो क्या करती थी कि वो SAP की डेवलप SAP का डेटा लेके इसमें लेके आती थी, इसका डेटा वापस उसमें लेके आती थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो भी बंदा काम करेगा उसको ये दोनों सिस्टम साथ में चाहिए। तो मैंने कहा किसी पर डिपेंड करने से अच्छा कि हम अपनी इनहाउस टीम डेवलप करें। दूसरी एक रिक्वायरमेंट काफी लोगों की आती है कि वो कहते हैं कि मेरे को एक अलग ऐप डेवलप करनी है, मेरे को कुछ ऐसे काम करने हैं जो थोड़ा सा इससे बियॉन्ड हो। तो मैंने हम सब लोगों ने मिलकर एक टीम डेवलप करी
हमारे लगभग 40 लोग हैं जो कि कस्टम डेवलपमेंट का सारा काम करते हैं। टीम के बाद में हमने लगा एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। हमने देखा कि जिसको CTI बोलते हैं, आज की डेट में अगर मेरे पास में डेटा सारा है, अगर मैं उसको एनालाइज कर सकता हूँ, तो सेल्सफोर्स के पास में एक दुनिया का टॉप BI टूल है जिसको टैब्लू बोलते हैं। तो हमारे पास में टैब्लू की भी एक टीम है। टैब्लू क्या करता है, जब हमारे खूब सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है उसको एनालाइज करता है और उससे वो एक इंसाइट्स बनाता है जो कि मैं यूजल कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे अगर आप इलेक्शन का डेटा देखते हो तो वो सारा टैब्लू में आता है, खूब सारा डेटा है, हजारों चीजें आपको देखने के लिए है, तो आपको ब्लॉक्स बना के दिखाता है, ये वाली पार्टी अच्छा कर रही है, ये बुरा कर रही है। तो आपको एक ही स्लाइड में ऑलमोस्ट एक स्टेट का पूरी क्लैरिटी मिल जाती है। ये सब लेने के बाद मैंने बोला कि ठीक है ये सब हो गया, लेकिन डेटा भी आ गया, कस्टमर के प्रोसेस भी हमने कर लिए, एक चीज मिसिंग है, कस्टमर से बात कैसे करेंगे। तो हमने इन हाउस टूल डेवलप किया, इसको CTI टूल बोलते हैं। जैसे अपने मार्केट में जितने देखेंगे, पर ये एक ऐसा टूल है जिसमें कि जितने भी बेस्ट प्रैक्टिस सारे लोग यूज करते हैं उसको लाकर हमने खड़ा किया। तो इस तरह से हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम यूज किया जिसमें कि हमने कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट को समझा, जिसमें हमने एक टीम डेवलप करी। तो मेरी 100% जो टीम है वो सर्टिफाइड है। तीसरा, हमारी टीम में जितने भी चीजें, जैसे अपने निशान जी ने दिखाया था कि वो सारा का सारा सर्कल में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास में, उसके लिए 3 या 4 या 5 लोग हैं। और बेस्ट पार्ट इसके, हम एंटायर इंडस्ट्री के लिए और एंटायर मार्केट सेगमेंट के लिए हम 2 चीजों में डिवाइड करते हैं कि साइज, जैसे SMB से लेकर एंटरप्राइज से कितने लोग हैं, और हम देखते हैं मार्केट सेगमेंट क्या है, इंडस्ट्री सेगमेंट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, फाइनेंशियल। हमने हर एक में मेरे पास में 10 से 12 कस्टमर्स हैं। तो आज की कोई बेनिफिट क्या है कि अगर किसी को सेल्सफोर्स सोचना है तो वो मेरे पास आराम से इसलिए आता है क्योंकि उसको पता है कि एक तो इसके पास एक टीम है जो पूरी चीज समझती है, एक और हमने एक और अच्छा काम किया कि इससे पहले ट्रेडिशनली हम सब लोग कैसे सोचते थे कि मैं आपके पास आया, मैंने आपका प्रोसेस समझा और मैंने उसको सोल्यूशन बना के लगाना शुरू कर दिया। हमने रियलाइज किया कि काफी जगह पे, स्पेशली जहाँ पे मेरे पास में एक टेक्निकल टीम नहीं है एज ए कस्टमर, मेरे को जरूरत पड़ती है कि कोई मेरे पास आए, मेरे साथ बैठे और मेरे को बताए कि मेरे को कौन सा सोल्यूशन लेना है, कौन सा सोल्यूशन मेरे फिट बैठेगा, कौन सा सोल्यूशन को यूज करने के लिए मुझे आज 25 यूजर को देना है, कल उसको कैसे एक्सपेंड करना है। आज क्या मेरे पास इतनी हिम्मत है कि मैं सेल्सफोर्स, जैसे सेल्स प्रोसेस ऑटोमेशन है, सर्विस की प्रोसेस ऑटोमेशन है, मार्केटिंग, क्या मैं आज तीनों चीजें इकट्ठे कर सकता हूँ, या मुझे एक में स्टार्ट करना है, उसमें अपने आप को अपग्रेड करना है। जब मेरी कंपनी को सबसे बड़ा चैलेंज एडॉप्शन का आता है, आपने सेल्सफोर्स लगा लिया लेकिन आपकी जो टीम है वो इतनी ज्यादा कंफर्टेबल स्टार्टिंग में नहीं होती, तो हमने अलग से डिपार्टमेंट बनाया जिसका एक ही काम था, वो कंसल्टिंग करती थी, पार्टनर के पास बैठ कर उसकी पूरी रिक्वायरमेंट समझती थी और उसके बेसिस पे उसको सोल्यूशन देती थी। थैंक यू। सो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में क्या मार्केट पोटेंशियल देख रहे हैं? मैंने अपने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात की, इमर्जिंग IT सेक्टर की बात की, फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग डिविजन्स हैं, तो आपको क्या पोटेंशियल दिखता है इस मार्केट में? देखिए, ऑफ लेट अगर हम पिछले 3-4 साल की बात करें, एक चीज बहुत बढ़िया हुई है, जो वर्ड हम यूज करते हैं इवॉल्व, सब लोग इवॉल्व हुए हैं। अगर आप देखेंगे सेल्सफोर्स लास्ट 3 साल में बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ है। आज के दिन पे ऑफरिंग देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट मेरे हर एक प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए उसके पास एक ऑफरिंग है। कस्टमर इवॉल्व हुए हैं। आज से 4 साल पहले शायद आप सबके पास में वो नॉलेज नहीं थी, बट आज हर एक कस्टमर को पता है कि क्या मुझे आज काम करना है, मेरे को इस टेक्नोलॉजी से क्या चीज चाहिए, कंपटीशन क्या है, कॉस्टिंग क्या होती है, इसको करने से मेरे को क्या फर्क पड़ेगा। तो आज कस्टमर भी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुका है, उसको भी सब कुछ पता है। तो मेरे को लगता है कि चंडीगढ़ विद मैन्युफैक्चरिंग हब, विद फूड स्ट्रक्चर्स, विद स्पोर्ट्स एंड ऑल, चंडीगढ़ में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है इसलिए बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि टेक्नोलॉजी मेरे को यूज करनी ही पड़ेगी। कोविड के बाद में हम सब लोगों को एक चीज रियलाइज हुई कि जब भी मैं टेक्नोलॉजी का सिस्टम लगाऊंगा मुझे वो सिस्टम बहुत ज्यादा एडवांस लगाना पड़ेगा, नॉर्मल रन ऑफ द मिल से काम नहीं होगा, मेरा एक्सेल से काम नहीं होगा। उस टाइम मुझे लगा कि जब मेरे पास खूब सारा डेटा था तो मेरे सारे सिस्टम क्रैश होने शुरू हो गए क्योंकि वो जो प्रोडक्ट था वो उतना ज्यादा मैच्योर नहीं था। आज हमें लगता है कि Salesforce is at the right position to cater to the requirement of Punjab, Haryana and cities around, because यहाँ की स्टार्टअप सिस्टम को, यहाँ की हर एक कंपनी को ये पता है कि मेरे को आज नहीं तो कल टेक्नोलॉजी यूज करनी ही पड़ेगी। Thank you Rashi. I spoke about Kotak Bank, मैंने कोटक बैंक की बात करी, टाइटन ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात करी, तो क्या छोटे बिजनेस भी ये सोल्यूशन यूज कर सकते हैं और क्या चैलेंजेस आते हैं? जैसे कोई 2 मेंबर की कंपनी हो या 4 मेंबर की कंपनी हो
आप भी जब स्टार्ट किया था 4 लोग थे, तो क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या कैसे आप सॉल्व करते हैं? तो जो सेल्सफोर्स की सबसे ज़्यादा ब्यूटी है, मैं पंजाबी बोल सकता कि जो खासियत है कि जो सेल्सफोर्स की हैगी कि एक फर्क नहीं पैंदा कि वो 5 लोगों की कंपनी है कि 50 लोगों की कंपनी है। मैं हुणे बाहर गल कर रहा सी ते जेड़ा बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं सारे ने दिता कि एक दिल्ली में ज्वेलर हैगा, वो गल करता सी कि मैं वो आ रही मैं सेमिनार अटेंड करना आंदा सी सेल्सफोर्स साहब कहते मैं किस तरह यूज करांगे तो बड़ा महंगा टूल होएगा। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਜੈਮਸ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਸਟੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਸਟੋਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲਫੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ 5.5 ਰੱਤੀ ਦਾ ਸਟੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤੇ 5 ਰੱਤੀ ਦਾ ਚਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾ 5.5 ਰੱਤੀ ਚਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5.5 ਰੱਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 5 ਰੱਤੀ ਮੇਰਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਕੈਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਗਰ ਸਟੋਨ में रख लेता वो शायद 6 महीने साल ना बिके, इस करके लोग लिमिटेड स्टॉक रखते हैं। चैलेंज किया कि वो बंदा कहता कि यार देखो, प्लस अभी जैसे गोल्ड या ज्वेलरी लाइन जाने ना ऐसी जगह जाने जी जान जाती हुए, मैं अपने कजन को पूछना कि यार कोई जान वाला है, मैं उत्थे जान तो नहीं मिलती ना, फिर थोड़ा टाइम लगाना, चलो मैं दूसरा कोई रिलेशन ढूंढा क्योंकि पता नहीं बंदा की देगा की नहीं देगा। स्टोन गोल्ड का तुहानू पता चलेगा हालमार्क होगी, हुण ओहदा की करोगे ते वो कहता पहले वो बंदा आंदा सी, मैं मना करदा सी चले जांदा सी। हुण उन्होंने की कीता कि उन्होंने सेल्सफोर्स दे एक लाइसेंस लिया ते सेल्सफोर्स दी एक छोटा जिहा इंप्लीमेंटेशन कराई। अरे ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਹਾਰਡਲੀ ਐਸੀ ਹੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੁਐਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮੀ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਯਾਰ ਉਹ 5.5 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਧਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, बिकॉज ही इज वेटिंग एनीवेज। वो बंदा इतनी जल्दी किसी और को जाएगा भी नहीं, ऐसे है नहीं ना कि और चीज़ें मैं जाके चुक ली थी किधर। वो अपने मुंह बंदा बोलता है कि भाई साहब मैं जेडे 3-4 लाख रुपए मैं खर्चा किया सी, आज की रेट मैंने ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 20-25 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। दूसरा बेनिफिट उन्होंने की है कि उनकी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 0 है। वो तो नहीं इन्वेंट्री रख के बैठ जाए पहले से ही, ठीक है ना, वो तो खाली वो ग्रुप में बांधना है, किसी ने किसको सामान होता है लेके आता है। तो कहने का मतलब ये है कि छोटे से बड़े का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, ये तो रिक्वायरमेंट की गल है, किसी ने नहीं यूज कर सको। दूसरा ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਐਸਐਮਪੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਿਡ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਅਸੀਂ 2 ਪਾਰਟੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਹੋਏ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਐਮਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਏਗਾ। दूसरा है कि बड़ा एंटरप्राइज हैगी, ठीक है ना, उन्होंने अलग तरीके ट्रीट करना। तो असी की करने कि हर एक कस्टमर को जाके ये समझना है कि उसकी रिक्वायरमेंट की है। So मैं born and brought up पंजाब रोपड़ and 11-12 चंडीगढ़, उसके बाद इंजीनियरिंग करने बॉम्बे IITB कैलकाटा MBA, एंड कोविड के बाद a lot of us जो बॉम्बे गुड़गांव काम कर रहे थे we moved to our home places. I started अभी जो है स्टार्टअप कर रहा हूँ, I started in 2 years back, and अभी हम I'm the founder and CEO of Sales Agency है। तो इसमें हमारा प्रोडक्ट साइड से एम है कि हम AI वॉइस बॉट बना रहे हैं essentially which helps companies improve their skills, like sales को 2 times करना, 5 times करना, 10 times करना, उसकी जो bottlenecks होती हैं in terms of एक ह्यूमन सेल्स पर्सन कितने कॉल्स कर सकता है दिन में, एंड देन आपके पास जो इनबाउंड लीड्स आई हैं 100 लीड्स आई हैं, उसमें से यू स्पीक टू ऑल ऑफ देम, जो इंटरेस्टेड होंगी दोस विल बी लाइक 10 आउट ऑफ देम। तो हमारा एक ह्यूमन इंडिस्टिंग्विशेबल वॉइस बॉट है जो बेसिकली फोन कॉल्स पे या व्हाट्सएप मैसेजेस पे बात करता है विद द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स एंड फाइंड्स आउट कि कौन 10 इंटरेस्टेड है। लाइक दिस इज the technology अभी इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि like this कि AI now is able to operate at a level where humans are, and then it helps the salesperson focus on very interested leads. So इस product से हमने शुरू किया है, and this is the first set of product for us, और हम यहाँ से मोहाली से बैठ के बना रहे हैं। and my experience over the last 3-4 years, right, in
Mohali is कि now I'm seeing a lot of companies जो भी मैं मिल रहा हूँ पिछले 1-2 साल में, especially from startup perspective, product perspective से, who are based out of here, offices like 10% team, 20% team, 50% team, and who are catering to customers globally, like US में customers, Europe में customers, UK में customers. हमारे खुद के अभी हमने start किया majorly enterprise customers from Bombay and Bangalore, mostly financial services. या ऑटो सेक्टर या एडटेक सेक्टर, इन सब पे हमारा खुद का फोकस है. सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अस एंड आवर एम, राइट, मतलब वी हैव लाइक प्रोडक्ट साइड से आवर एम इज टू बिल्ड टू बेसिकली गो ऑन द यूजर साइड, एंड दैट्स हाउ वी इमेजिन लाइक 2 years डाउन द लाइन हाउ टेक्नोलॉजी एंड एआई विल इवॉल्व, कि ऑल ऑफ अस, a lot of us will have AI advisors for us in terms of financial planning, financial purchases, sale purchases. So that's where like the word there is going to be very, very different in next few years time with jitni fast abhi advancements ho rahi hain, especially in AI. So that's, we want to be forefront of that. I do believe even at this stage with the very first जो अभी हमारा पहला product है, I do genuinely believe we have the best product not just in India but globally, and that's wasn't possible, right? Matlab sometime back. So this is how like we are getting good amount of some talent here, some in other parts of India as part of remote. So this is how like Chandigarh, Mohali is evolving as well, and I do see this is a journey over next few years, let's say 5 years, with cities like जैसे पुणे ने कवर किया, चेन्नई, more like हैदराबाद ने कवर किया, right? Now they started off with one major unicorn, एक कंपनी बड़ी बनी startup technology side से, फिर और बनी, and that's the evolution which I see happening and the potential that I see happening here as well. And I'm literally seeing that with number of founders and startups who are running companies like these. Okay, thanks. So you know, it's great to learn कि दुनिया का सबसे, your ambition is to make it as a world-class product and take it globally, being based out of Mohali. हमारा जो एसोसिएशन हुआ आपके साथ वो स्टार्टअप प्रोग्राम के थ्रू हुआ, and I spoke about that we are having 20 companies like this organization as part of the startup program. Do you want to share some thoughts, अपना perspective देना चाहेंगे कि startup program, how is it helping you to go to market? Yeah, absolutely. I think so Salesforce we spoke about like as a CRM, right? And उसकी importance like I saw in my professional experiences before startup. Like इससे पहले I was working for a Bangalore-based company called ClearTax, और उससे पहले OYO in Gurgaon. And when I joined ClearTax to lead their B2B SaaS enterprise, one of the 3 businesses, we were using another CRM initially. And जो like one of the first slides में second slide में I noticed few words like source of truth. That is something which is critical for fast growing companies, चाहे वो startups हो, चाहे वो industry में हो. And this is the first problem that I had faced in my last organization as well. And within 6 months, we had switched to Salesforce. Like this was one of the first things that we had done as well. Because when you are trying to move fast, you are looking for single source of data, like single source of truth. You are looking for data points in detail, right? कि कैसे कि अगर मुझे sales productivity देखनी है कि persons की, या मुझे देखना है deals पे कितना time लग रहा है, all of that I should be getting that information in my CRM, and that becomes the core crux of जिसके basis पे हम analytics करके like we can grow together, right? We can give feedback to our business teams, to our sales teams, and all of that. So this is kind of a small experience from. So that was sort of first experience, hands-on experience with Salesforce. I think हम अभी last 1 साल से associated हैं. We are part of the startup program. We've been selected by Salesforce, and what I'm seeing is it's not just the biggest CRM company or the biggest software enterprise company globally,
But even at a level, and I see like a number of startups like us across India are part of this program. So there's a dedicated group jahan pe we are getting all sorts of help, right? From Salesforce की special team बनी हुई है internally who help us out, guide us with respect to क्या sort of opportunities हैं, how to generally build together. In fact, we are in early discussions for a common GTM as well. जो हेडक्वार्टर ग्लोबल हेडक्वार्टर्स हैं वो सैन फ्रांसिस्को में है और इंडिया में 2005 से हम ऑपरेट कर रहे हैं और हैदराबाद में, बैंगलोर में, पुणे में, गुड़गांव और बॉम्बे में हमारे ऑफिसेस हैं। एक चीज मैं आपकी स्क्रीन देख रहा था अभी, आपने ये बताया कि आपकी जो सारी कंपटीशन वाली जो कंपनियां हैं वो उनका जो टोटल सेल्स फोर्स है वो आपके भी जो 21% कुछ समथिंग कुछ ग्रोथ थी आपकी जो है या सेल्स थी आपकी, वो सारी कंपनियां जितनी भी कंपटीशन है, अमेजोन हो गया या दूसरी जो भी कंपनियां हैं वो सारी कंपनी, तो ऐसा क्या फर्क है आप में कि सारे कस्टमर आप ही की तरफ आ जाते हैं? थैंक यू ये चीज़ पूछने के लिए। अगर आप हमारी 99 में when we got incorporated, our vision was to be the number one CRM provider. Secondly, हमने इस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को काफ़ी चेंज किया। पहले अगर आप सॉफ्टवेयर खरीदते थे तो आपको हार्डवेयर चाहिए होता था, इंस्टॉल करना पड़ता था, पर हमारी कंपनी ने इस मॉडल को चेंज किया और क्लाउड बेस्ड मॉडल, डिलीवरी मॉडल डिप्लॉय किया, विच मीन्स कि आप अगर लॉगिन आईडी अगर हम आपको दें तो आप सीधे लॉगिन करके अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज, हमने हाल ही में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। एक लेंडिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया है बिकॉज हमें लगता है कि इंडिया में स्केल और डाइवर्सिटी काफ़ी डिफरेंट है। इसके लिए हमने लेंडिंग क्लाउड लॉन्च किया है एंड इट इंटीग्रेट्स विद योर आधार ऑथेंटिकेशन सिस्टम. It handles the scale that India needs and it also delivers the diversity that India needs. Chautha, a rich partner ecosystem and the startup ecosystem enhances our offering. जैसे कनिक की कंपनी मल्टीलिंगुअल बॉट बनाती है, तो उनके साथ अगर हमारा इंटीग्रेशन है तो ऑल योर इंडियन रिक्वायरमेंट्स आर मेट. आपने नरेश जी से सुना क्वाड्राफोर्ट. They cater to all the Indian needs and the requirements and making the customer successful. तो आप ट्राई सिटी में आ रहे हैं, ट्राई सिटी के लिए आपका पार्टनर प्रोग्राम्स वगैरह क्या, उसके लिए आपने कुछ नहीं बताया इसके अंदर कि पार्टनर प्रोग्राम क्या रहेगा आपका, कैसे पार्टनर्स को बनाएंगे, क्या उसकी मतलब पार्टनर को बनाने के लिए क्या चीज़ देखेंगे, वो कुछ आपने आपकी स्लाइड में नज़र नहीं आया. तो पार्टनर्स के लिए हमारा स्किल फोकस है. मैंने एक चीज़ मिस कर दी है. ट्रेनहेड करके ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है. अगर आपको सेल्सफोर्स स्किल्स एक्वायर करने हैं, आप ट्रेनहेड में लॉग इन कीजिए अपना कोई भी ईमेल आईडी से एंड द लर्निंग जर्नी स्टार्ट्स देयर. विद कॉलेजेस वी हैव अ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम टू गेट द स्किल्स विद इन द सिटी. पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा, हाउ डू वी गेट द लोकल स्किल्स इन द सिटी. Then we have partners who are willing to expand into this city. So Naresh ji is already doing some implementations in this area, and partners like Quadrafort are willing to expand and come to this city and locally be here to serve the customers.